શિક્ષણ પર સંગ્રામ નમસ્કાર હું છું આપની સાથે કૃષ્ણા આપ જો રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ શિક્ષણને લઈને હાલ રાજનીતિ બરાબરની ગરમાય છે કારણ કે દિલ્હી અને ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીઓ એકબીજા પર જે રીતે આરોપ પ્રત્યારોપ લગાવી રહ્યા છે વાક પ્રહાર કરાવી રહ્યા છે પરંતુ તે પહેલા અમે શરૂઆતમાં આપણે ત્રણ વિન્ડો બતાવીશું શિક્ષણ પર રાજનીતિ ગરમાય છે પરંતુ આ વિન્ડો થકી સમજવાની કોશિશ કરીશું આ દ્રશ્યો થકી એક તરફ દિલ્હીના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના પશ્ચિમ દિલ્હીના સાંસદ પ્રવેશ વર્મા કે જેઓ દિલ્હીની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે દિલ્હીની શાળાઓની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને દિલ્હીની શાળાઓનું જે મોડેલ છે જેને અરવિંદ કેજરીવાલ રાષ્ટ્રીય સ્તરે દિલ્હીના મોડેલ થકી રાજનીતિ પોતાની આગળ વધારવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે તેની પોલ ખોલી રહ્યા છે બીજી બાજુ રમેશ બિધુરી છે કે જેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ છે દક્ષિણ દિલ્હીથી તેઓ પણ દિલ્હીની શાળાઓની મુલાકાતો લઈને પોપડાઓવાળી શાળાઓ બતાવી રહ્યા છે અને બીજી બાજુ ગુજરાતમાં આજે જ્યારે દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રી મનીષ સિસોદિયા આવ્યા છે અને ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીના મત વિસ્તાર ભાવનગરની શાળાઓની સરકારી શાળાઓની તેમણે મુલાકાત લઈ અને ગુજરાતની સરકાર પર અનેક સવાલ ઉઠાવ્યા છે શિક્ષણને લઈને તો શિક્ષણને લઈને રાજનીતિ ગરમાયેલી છે ત્યારે આપણે આ શિક્ષણ પર ચર્ચા કરીશું કહેવાય રહ્યું છે કે શિક્ષણ પર રાજનીતિ ન થવી જોઈએ પરંતુ વાસ્તવમાં તો આ જ એ મુદ્દાઓ છે કે જેના પર રાજનીતિ થવી જોઈએ કારણ કે શિક્ષણ અને આરોગ્ય એ એવા મુદ્દા છે કે જે વર્તમાન અને ભવિષ્યનું ઘડતર કરે છે અને હાલ ગુજરાતમાં 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે તે પહેલા શિક્ષણના મુદ્દાને લઈને રાજનીતિ બરાબરની ગરમાયેલી છે રાજનીતિક સંગ્રામ મચાયેલું છે આપણે આના મુદ્દે ચર્ચા કરીશું આપણી સાથે ગેસ્ટ પેનલમાં જોડાઈ ગયા છે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રવક્તા મિહિર પટેલ અને દક્ષિણ દિલ્હીના સાંસદ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી રમેશ ભિદુરી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે પરંતુ તે પહેલા અમે આપને એક ક્લિપ સંભળાવીશું કે આ આખા મુદ્દાને લઈને શું વાત થઈ રહી છે રમેશ ભિદુરી કે જેઓ કા જગ્યાએ ગયા હતા કઈ વિસ્તારમાં ગયા હતા કઈ શાળાઓની તેમણે મુલાકાત લીધી અને તેમણે શું કહ્યું તે એકવાર જોઈ લઈએ ये है जी स्कूल ये देखो वर्ल्ड क्लास स्कूल अपनी भी वीडियो तुम ऊपर आओ जरा ऊपर दिखाता हूँ ये देखो देख रहे हैं ना वर्ल्ड क्लास स्कूल ये रे स्कूटर से पड़ रहा है ये है वर्ड ये बोर्ड यहाँ लगा दिया पहले बोर्ड यहाँ टकरा था चलो शुक्र है ये है वर्ड क्लास इसकी स्टार्टिंग देखो नीचे ये नीचे की स्टार्टिंग देखो ये वर्ड क्लास ये सिंगापुर का नक्शा है ये देखो ये सिंगापुर के नक्शे हैं सारे हैं वो नहीं है ये अमेरिकन विंडो है इनके शीशे भी से गायब हैं ये अमेरिकन विंडो है ये अमेरिकन विंडो है केजरीवाल साहब की ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का स्कूल है શાળાઓની બદતર હાલત બતાવવામાં આવી રહી છે શાળાઓમાં પોપડા બતાવવામાં આવી રહ્યા છે અને આ મુદ્દે હવે સામસામે જે રીતે વાક પ્રહાર થઈ રહ્યા છે આપણે ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું રમેશ બિધુરી આપણી સાથે દિલ્હીના સાંસદ દક્ષિણી દિલ્હીના સાંસદ જોડાયેલા છે અને કિરીટ જોશી બંનેનું સ્વાગત છે સૌથી પહેલા रमेश पटेल रमेश भिदुरी ने अपने सवाल पूछीशु रमेश भिदुरी जी आपने दिल्ली की जो स्कूल से उसका आपने जो स्थिति है दिल्ली की स्कूल्स की वो आपने बताने की कोशिश की लेकिन आपसे ये सवाल आपने जो दिल्ली की सरकार द्वारा शिक्षण एजुकेशन मॉडल की जो बात की जा रही है उसने आपने बताया कि ये मॉडल बिल्कुल ही फेलियर है लेकिन सवाल आपसे पहले ये कि अभी आप क्यों स्कूल्स में जा रहे हैं जब दिल्ली के शिक्षण मंत्री दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया गुजरात में आते हैं गुजरात की स्कूल्स का हाल बताते हैं तभी आपको क्यों ये याद आ रहा है कि आपको भी दिल्ली की स्कूल्स में जाना चाहिए कृष्णा जी आपने अच्छा सवाल किया और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ 24 जनवरी को आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे 24 जनवरी को मैं हमेशा ऐसे स्कूलों में जाता हूँ चेक करता हूँ रेड करता हूँ मैं 3 बार दिल्ली में विधायक रहा हूँ 2 बार सांसद, उससे पहले 3 बार एमएलए भी रहा हूँ। लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझसे लोग पूछते हैं, हमारे बच्चों के लिए व्यवस्थाएं एजुकेशन की गिरती जा रही हैं दिल्ली के अंदर। तो आज तो कोई इंसिडेंट हो गया
कि मैं भी सुबह 7 बजे स्कूल में पहुंचा और केजरीवाल साहब के डिप्टी सीएम साहब गुजरात में गए, ये तो मुझे जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जब ये मुझे जानकर मैंने ट्वीट पे डाला ये अपने पे, तब मुझे पता लगा है दिल्ली में लगभग 1000 स्कूल हैं दिल्ली सरकार के अधीन। केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 500 स्कूल बनाएंगे। दिल्ली में एक सेक्शन में 100 बच्चे बैठते हैं। केजरीवाल साहब को 7 वर्ष हो गए। ये केजरीवाल साहब की सरकार की आरटीआई की कॉपी है मेरे पास। मैंने आरटीआई लगाई केजरीवाल साहब के यहाँ कि बताइए आपने पिछले 7 साल में कितने स्कूल बनाए। लास्ट ईयर इन्होंने आरटीआई में मुझे जवाब दिया है कि इन्होंने केवल दिल्ली में एक नया स्कूल बनाया है। केजरीवाल साहब ने 1.5 महीने पहले एक ट्वीट किया कि हमने सभी राज्यों से, जब चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तरांचल के अंदर, तो इन्होंने शिक्षा पर राजनीति करने की कोशिश की कि उत्तरांचल के लोग देखेंगे नहीं, यूपी के लोग देखेंगे नहीं, आप हवा में बात फेंक दो। इन्होंने कहा हमने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि पूरे राज्य में किसी केंद्र सरकार आज तक नहीं बनाई। मुझे वो बात बहुत चुभी कि कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये लोग, कितना गुमराह करते हैं, क्या परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जब ये स्कूल में जाकर रेड की, मैं जाता हूं स्कूलों में। आज मैं सुबह 9 स्कूलों के अंदर गया हूं, सुबह 9 स्कूल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर 1 स्कूल। बदरपुर के 5 स्कूलों में मैं गया, बदरपुर विधानसभा में, देवली में मैं गया, तुगलकाबाद में मैं गया हूं। 9 स्कूलों में जाने के बाद हालत देखी है। मोरडबंद में एक स्कूल में 6600 बच्चे पढ़ते हैं और कमरे कितने हैं वहां पर? कुल 65। आप इमेजिन कर सकते हैं। जो कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर रखा था, ये उनके भी बाप निकले। इन्होंने कहा हम 15 में 500 स्कूल बनाएंगे, 500। मैं पूछना चाहता हूं 7 वर्ष में केजरीवाल साहब आपने कितने स्कूल बनाए? पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से मैं ये बात। इन्होंने कहा 20 कॉलेज खोलेंगे। एक भी कॉलेज 7 वर्ष में नहीं खोला इन लोगों ने पिछले दिल्ली के अंदर जी। और परसेप्शन ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं। गुजरात के लोग तो दिल्ली में चेक करने आएंगे नहीं। ये टेलीविजन, रेडियो, उस पर वहां पर जाकर नौटंकी करना। अरे सिसोदिया साहब, पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों को देख लो। बोरडबंद में आके एक सेक्शन में 100 बच्चे बैठे हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में जिस स्कूल में मैं सुबह गया हूं, उसमें बच्चे हैं 5000 और रूम है 72। और जो प्रिंसिपल है इनकी, वो डरती हैं, भय है। वो क्या करती हैं कि जो लैब है, लैब को भी रूम में ऐड कर रही हैं। मैंने सुबह प्रिंसिपल से कहा लैब में क्लास लगती है क्या? क्लास लगेगी क्लासरूम के अंदर। वाई यू आर क्लबिंग द लैब? तो ये इनकी स्थिति है। वो इनको स्थिति दिखाइए। पीने के पानी की व्यवस्था खराब है। आप अपने चैनल पे 24 जनवरी को मेरी फेसबुक पर पोस्ट को देखिए कि बाथरूम की हालत क्या है, पीने का पानी नहीं है। प्ले ग्राउंड में जिस स्कूल में बीइंग एमएलए मैंने स्टेडियम बनाया, उनकी हालत क्या है? मैंने फोटो जारी की है, वो 3 महीने पहले जारी की है मैंने। जी रमेश जी, आपसे हम जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी से हम जवाब ले लेते हैं। मिहिर जी, જે રીતે રમેશ વિદુરે કહ્યું કે તમે આ એક આખું વિન્ડો ડ્રેસિંગ કરી રહ્યા છો, બતાવી કંઈક રહ્યા છો, જ્યારે વાસ્તવિકતા કંઈક બીજી છે। અને આમાં કેટલાક હું આંકડાઓ પણ જોડવા માંગીશ। 2021માં દિલ્હી સરકાર દ્વારા 98 કરોડનું દેશભક્તિ બજેટ સ્કૂલ્સ માટે લાવવામાં આવ્યું। અને બીજી વસ્તુ એ કે અત્યારે આખા 2 ભાગ પડેલા છે। એક બાજુ તમે સારી શ્રેષ્ઠ શાળાઓની વાત કરી રહ્યા છો, પરંતુ સ્કૂલ્સમાં 50% વેકેન્સીઝ છે અને શાળાઓની હાલત કેવી છે, ઓરડાઓની હાલત કેવી છે, એ રમેશ વિધુરીએ બતાવી દીધું। તો આવું કેમ? ગુજરાતની શાળાઓની સ્થિતિની તમે વાત કરી રહ્યા છો, પરંતુ દિલ્હીનું એજ્યુકેશન મોડલ કે જેના સ્તરે તમે, જેના આધારે તમે વોટ માંગવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, એ તો ફૂટેલું છે। एक बात आपको समझनी पड़ेगी। आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैं दूं। आपने जो आंकड़े बताए उससे पहले जो विदुरी साहब ने जुमले अभी आपके सामने और आपके चैनल पर रचे हैं, वो जुमलों का पर्दाफाश करना चाहता हूं। आज मेरे को पता चला कि ये भाजपा के नेता इतने बड़े जुमलों के शहंशाह भी हो सकते हैं। क्यों पता चला, मैं आपको ये दिखाता हूं। इन्होंने जिस वीडियो दिखाया, उस वीडियो का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जो बोर्ड लगा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बोर्ड लगा हुआ है कि ये स्कूल किसने बनवाया, किसने ओपनिंग किया। तो जरा गौर करिएगा, ये स्कूल जो ये वीडियो दिखा रहे हैं शहंशाह हमारे जुमलों के तानाशाह, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो बीजेपी ने बनाया हुआ है। और ओपनिंग ये जो अभी वीडियो में जो लोग घूम रहे थे, ओपनिंग उनके पिताजी ने की है और उनके बेटे आके, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। आप जूम करिए, आपको पता चलेगा। ये चीजें मैंने राउंड करके रखी है, नाम के साथ है कि बीजेपी के किस सांसद ने और किसने बनवाया है। इतना ही नहीं, रुकिएगा जी, आ स्क्रीन जूम करवानो આપણે પ્રયાસ जी કરીશું। बिल्कुल ही, इतना ही नहीं,
इतना ही नहीं, रुकिएगा इसके लिए अरे और भाई सारी- बनाया किसने, उसको मेंटेन कौन करेगा? रुक जाओ 7 बताता वर्ष में हूँ, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, क्या आपके खा रहे हो जुमले क्या? सारे खोल रहा हूँ, अबे रुक वो जाइए झूठों के बादशाह, रुक जाइए अबे मैं झूठों आपके के जुमले बादशाह, खोल रहा हूँ, रुक जाइए अबे दादा झूठों के दादा रुक बादशाह जाइए, दिल्ली आपके को हमने जुमले बनवा दी देखिए 7 साल में। देखिए ये आपके शर्त जुमले जो खोल रहा हूँ तुमने मैं, रखी है, एक मुझे तुम्हारे 1 मिनट बापू ने दीजिएगा। बनवाई है, ये इसको है, काम कौन ये जो करेगा? फोटो आपको दिख रही ये है शर्त जो तुम्हारे बंदा बापू दिखा ने रहा है जो पहन रखी है, इसको, तुमने रुक जाइए, बनाई क्षमता थी, रखिए, आपके इसको जुमले में खोल रहा हूँ, कौन करेगा? रमेश जी, शर्ट रमेश बनवाने जी, के एक बाद मिनट, क्षमता रखिए, आपके जी, जुमले आपसे में जवाब खोल रहा हूँ, देंगे, दादा। रमेश जी, एक मिनट। क्षमता रखिए, आपके जुमले रमेश जी, आपने जो कहा था- ये आम आदमी आपको जुमले खोलेगा, क्षमता रखिए सुनने की। रमेश जी सुनने की क्षमता, ये देखिए ये वो बंदा है जो वीडियो में स्कूल दिखा रहा है। अभी सुनेंगे नहीं, जुमले सुनेंगे नहीं चीजें। रमेश जी, रमेश जी, एक मिनट, आप- अभी चीजें सुनेंगे नहीं आप। एक मिनट रमेश जी, आपको जो बताना था आपने चीजें कहा अभी बाबू साहब के पास सुनेंगे। आएंगे। ये जो बोल रहे हैं, ये सुनेंगे नहीं ना अभी। रमेश जी, आपको आप जो जो भी बताना मैडम था साहब, एक आपका मिनट, पैसा मीर भाई, अगर ये एक स्कूल मिनट। बीजेपी ने बनाया भाई, है ये तो जुमलों 7 का साल में पर्दाफाश में करने आया हूँ कृष्णा आपके जी, चैनल पे। अगर ये क्यों स्कूल सुन नहीं बीजेपी पा ने रहे हैं? बनाया है तो 7 साल में इसकी इतने- मेंटेनेंस कौन इतने करेगा? सच्चे हैं, इनका बापू नहीं वीडियो करेगा। बनाया है, जब इनका सुन बापू क्यों नहीं बनी पा रहे सीखोगे हैं? 7 साल से इसे क्या कहते कर रहा हैं है? जुमलों के जब इनका बादशाह। बापू जी बना मीर बनी जी, एक मिनट, जी, उनको एक बताइए, मिनट, एक उनको मिनट, सुनिए। एक मिनट, एक मिनट। बिल्कुल, रमेश जी, बिल्कुल। आपसे शुरुआत आपसे की थी। रमेश जी, एक मिनट, आप मुझे सुनिए। रमेश जी, शुरुआत आपसे की थी, आपको सवाल पूछा गया था, अब आपको सुनना पड़ेगा कि मिहिर जी क्या कह रहे हैं। एक मिनट केजरीवाल क्या कर रहा है? रमेश जी, आपको सुनना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। मिहिर जी, एक तो ये मैंने आपको दिखा दिया, अब दूसरा रमेश जी ने ये कहा कृष्णा कि जी, वो इसको बकवास मेंटेन, ज्यादा कर रहा अभी ये है। सुनेंगे वो नहीं, बकवास ज्यादा कर रहा है। अभी ये सुनेंगे नहीं। रमेश जी, आपको वक्त दिया जाएगा अभी जवाब सुनेंगे के लिए। साथ में आप अब सुनिए तो बकवास ना सही, करे, जब आप बोल रहे सभ्यता थे। की- वो ही सेइंग कि इनके बापू ने सुनेंगे बनाया है। एक ये मिनट। भाषा का उपयोग क्यों कर रहा है? इसके बापू केजरीवाल 7 साल में क्या करते रहे? मैं इसके बाप केजरीवाल से सवाल करता हूं। रमेश जी, रमेश जी, हम यहाँ पे भाषा की मर्यादा रखेंगे। रमेश जी, आप सांसद हैं। इनके जज्बे गीले हो गए, इनके कुर्ते गीले हो गए, सुनेंगे नहीं अभी। रमेश जी, नहीं सुन पाएंगे। मीर जी, रमेश जी, आप बिल्कुल। सांसद हैं, आप पब्लिक, तो उसकी मेंटेनेंस 7 साल में कौन कराएगा? पसीना आ गया रमेश जी, मैं समझ इसका सकता बाप हूँ। क्या कर रहा है 7 साल में? आपकी केजरीवाल गिरेबान में जाके आपका ये कैसी जज्बा जो भाषा है, रमेश जी, क्या आप करिए? सांसद हैं, इसके बाप आप से पूछो। सांसद हैं, आप इसके जनप्रतिनिधि बाप से हैं। पूछो केजरीवाल आपको से। भाषा की एक मर्यादा ये भी पूछो अपने रखनी है और बाप से आपका केजरीवाल जो से। मुद्दा है वो रखना जिसका है। एक चेला बन के बैठा है उसे एक पूछ। मिनट जी, ठीक है रमेश जी, आपने बताया मीर जी એવું કહી રહ્યા છે કે આ સ્કૂલનું ये ઓપનિંગ शब्द તમે इसने જે बोला રીતે ना। કહ્યું। મને बोलवा दो, इसके तुमने बाप- स्पष्ट इसके करिए बाप ने आपको। बनाया। जी, रमेश जी, मैंने बोलवा दो। तो इसका बाप क्या कर रहा है केजरीवाल 7 साल से? रमेश जी बताए बस, मुझे रमेश जी बस, एक मिनट लगी ना सुन आग, लीजिए। लगी ना ये आग, मैं नहीं, देश की जनता आपको लगाने वाली है, तैयार रहिएगा, आप घर वापस आने वाले हो। ये आग को छुपा के रखिएगा। दूसरी बात, आपने हमें ये कहा कि इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी है। से पूछो अभी मैं बोल उत्तरांचल में उनको औकात बताइए। अपने औकात की, ये 4 पैसे का जवाब भी हमारी औकात की बात करेंगे। इनसे 4 पूछो पैसे के संजय भाजपा के ने लोग यूपी में हमारी जो औकात देखेंगे। दिखाएंगे। यूपी में 400 पर कौन बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? ये लोग हमें हमारी औकात सिखाएंगे, 4 पैसे के प्रवक्ता तुम्हारी औकात बता दी तुम। हमें दिखाएंगे औकात, 4 पैसे के लोग। तुम्हारी औकात औकात हमेशा जनता दिखाती मीर है। भाई, रमेश जी एक मिनट, तुम्हारे रमेश बापू जी केजरीवाल की औकात यूपी के लोगों ने बता दी। जनप्रतिनिधि है रमेश जी, गोवा के आपको लोगों ने ये है सुनना पड़ेगा। सांसद। मीर एक उत्तरांचल के मिनट, लोगों ने एक ओके, मिनट, ओके। एक मिनट, तुम्हारी हैसियत रमेश जी, तुम झूठों के रमेश जी हैसियत आपको बता रहे हैं। सुनना पड़ेगा। तुम एक मिनट लेकर रमेश जी, झूठा आपको चाहते हो। सुनना पड़ेगा, तुम्हारी आपको औकात सुनना बता दी। पड़ेगा, आपको तुम्हारा जवाब बापू देने रोज का झूठ मौका बोलता है, मिला फिर था। वापस सब अब देता है। सुनना पड़ेगा आपको, वरना आपको म्यूट किया जाएगा। आपको सुनना पड़ेगा, आपको जवाब देने का मौका मिला गया था और आपको भाषा की मर्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है। इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। आपको जो सवाल पूछा जाता है उसको जवाब भाषा की आपको देना मर्यादा पड़ेगा। इन्होंने खराब की है मैडम। रमेश जी, आपको सवाल पूछा गया है, आपको सवाल प्लीज, पूछा गया है। अरे एक कृष्णा जी, सुनिए मिनट, मुझे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट आपको रुकना नहीं, पड़ेगा। नहीं, नहीं, नहीं। रमेश जी, इन्होंने रुकना शब्द पड़ेगा यूज आपको किया, यहाँ पे। इन्होंने शब्द यूज किया। कृष्णा जी सुनिए मुझे, कृष्णा जी सुनिए मुझे, कृष्णा जी सुनिए। इन्होंने कहा आपको सुनने के लिए ये थोड़ी स्कूल उन्होंने इनके चैनल बापू ने खोल के रखा बनाया। है। एक ये मिनट। सब कैसे बोला इन्होंने? ठीक है, अब आप नहीं कैसे बोलेंगे। बोला उसका अब आप जवाब नहीं देता हूं। बोलेंगे। मिहिर जी, वो એવું કહી રહ્યા ये છે कि शब्द તમે इन्होंने जे- यूज किया ना, रमेश जी, फिर इनके ठीक है, बापू ने आपका जो बनाया। सवाल है मैं पूछ रही हूँ, आपको सुनना पड़ेगा ना। आप सिर्फ बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? एक मिनट મિહિર જી એમણે એવું કહ્યું કે ઓપનિંગ તમારા એમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે મેન્ટેનન્સ કોણ भाषा में बात કરશે करेंगे। ठीक है रमेश जी होना बस चाहिए। रमेश जी आपको सुनना पड़ेगा आप सुनिए ये सवाल होना चाहिए कि मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसकी है। इनकी औकात क्या है? तो ये अभी औकात की बात करेंगे तो कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए। अभी ये भाई कैमरा आपको जूम करना पड़ेगा। ये है उनके दिखाए गए वीडियो की ठीक है। दूसरी स्क्रीनशॉट, देखिएगा। મિહિર ભાઈ एक मिनट, एक मिनट आप आपे વાત કરી દીધી કે ये આ दूसरा स्कूल नहीं, हाँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है ये।
ઠીક છે, પણ સવાલ એ થઈ રહ્યો છે શિક્ષણ પર રાજનીતિ થવી જોઈએ, પરંતુ મુझे- એ કે मुझे 30 શા seconds માટે लगेंगे। શા માટે તમે એવી સ્કૂલ્સ ચૂઝ કરી રહ્યા છો, શા મેમ, માટે मुझे- એવી સ્કૂલ્સ मुझे ચૂઝ 30 કરવામાં આવી રહી seconds- मुझे છે 30 કે seconds જેમાં કામ लगेंगे। નથી થયું, એના પક્ષે બીજી સારી સ્કૂલ્સ છે એના પર ફોકસ નથી કરવામાં આવી રહ્યું, यस શા માટે? बता रहा हूँ वो चीज मैं आपको। मुझे 30 सेकंड दीजिए। उन्होंने जो सवाल किया कि मेंटेन करना हमारा काम है, उसके ऊपर आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये देखिए, ये वीडियो का दूसरा स्क्रीनशॉट है जिसमें साफ दिख रहा है कि वो जो स्कूल दिखा रहे हैं वो पुराना मकान है, और उसके एग्जैक्ट सामने देखिए बोर्ड के ऊपर भी राउंड किया गया है। जो नया स्कूल दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने बना दिया है, जो हमारा काम है बच्चों को ठीक है। अच्छी शिक्षा देना, ઠીક છે, वो हमने આપણી किया है। સાથે देखिए, શિક્ષણવિદ आपको zoom જોડાઈ ગયા करके છે। लोगों को મિહિર, दिखाइए। બસ जी, આપણે अब- આપણી अब- સાથે अब- અન્ય अब आपने ગેસ્ટ जो सवाल पूछा, આપણી वो- સાથે અન્ય ગેસ્ટ आप- જોડાયેલા आपने છે, जो પછી सवाल- પછી આપને મોકો ओके, મળશે। ओके, ओके। આપણે અહીં માત્ર બે ગેસ્ટ પર નથી રમવાનું, આપણે બીજા ગેસ્ટ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, એમની પાસે જવાબ મેળવવાના તમારે છે। કહેવું પડશે ને તમારી ચેનલ પર। દરેકને એક સમય મર્યાદા આપવામાં આવે છે, સમય મર્યાદામાં જવાબ આપવાનો છે તમારે। શિક્ષણવિદ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે કિરીટ જોશી। કિરીટભાઈ, સ્વાગત છે આપનું। અત્યારે આપે જોયું કે જે રીતે શિક્ષણ પર સંગ્રામ મચેલું છે, પરંતુ મચવું જોઈએ, આ એક એવો મુદ્દો છે કે જે આપણા ભવિષ્યને અસર કરે છે, પરંતુ વાત અહીં એ થઈ રહી છે બંને પક્ષે જે આખી કડવી રાજનીતિ થઈ રહી છે, દુષ્ટ રાજનીતિ થઈ રહી છે, અને માત્ર નેગેટિવ આખો પોલિટિક્સ રચવામાં આવી રહ્યું છે, તેને લઈને આપ શું કહેશો? શિક્ષણ એક પવિત્ર વ્યવસાય છે, પણ સમહાવ કેટલાક મહિનાઓથી શિક્ષણને જાણે કે ખુરશી ટકાવવાનો અને ખુરશી સુધી પહોંચવાનો રસ્તો બનાવી દીધો છે। શિક્ષણ પ્રક્રિયાને એક સાધન બનાવી દીધું છે આજના રાજકારણીઓએ। દોસ્તો, શિક્ષણ તો એક બહુ પવિત્રમાં પવિત્ર વ્યવસાય હોવાથી રાષ્ટ્ર વિકાસમાં એક મહત્વનું સાધન છે, એના બદલે આપણે રાજકારણનું સાધન બનાવી રહ્યા છીએ। દરેક સંસ્થામાં, કોઈ પણ દરેક રાજ્યમાં, ચાહે રાષ્ટ્રનું ગુજરાત રાજ્ય હોય કે મહારાષ્ટ્ર હોય, ભારતનું દિલ્હી હોય કે ભારતનું પંજાબ હોય, એ ભારતનું છે, આપણા રાષ્ટ્રનું છે, અને દરેક રાજ્યમાં શિક્ષણની વ્યવસ્થા ઉત્તમ રીતે છે જ। ક્યાંક ત્રુટિઓ પણ હશે, પણ આપણે ભરેલા પ્યાલા જોવાના બદલે માત્ર ને માત્ર જેટલો ખાલી ભાગ છે એટલો જ દરેક જણ જોઈ રહ્યા છે। આ યોગ્ય નથી। ગુજરાતની અંદર પણ શિક્ષણના ઘણા સારા પ્રયોગો થયા છે, ગુજરાતમાં પણ ઘણી સારી શાળાઓનો વિકાસ થયો છે, ગુજરાતમાં પણ ઘણી સારી વિશ્વવિદ્યાલયો બની છે, ગુજરાતમાં પણ ઘણા સારા અભ્યાસક્રમો શરૂ થયા છે। હું એમ નથી કહેતો ગુજરાતમાં જ થયા, બીજા રાજ્યોમાં પણ થયા છે, પણ જે રીતે ગુજરાતને એક રાજકારણનો અડ્ડો બનાવી શિક્ષણને જે બદનામ કરવાની વાત છે, શિક્ષણને લઈને દિલ્હી અને ગુજરાતની રાજનીતિ બરાબરની ગરમાયેલી છે અને આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ આ આખી રાજનીતિમાં એક ઉડીને આંખે વળગે એવી બાબત એ છે કે અહીં પોઝિટિવની જગ્યાએ માત્ર એક નેગેટિવ આખો કારસો રચાઈ રહ્યો છે, નેગેટિવ બાબતો પર વધારે ફોકસ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને રાજનીતિ પણ નેગેટિવ રીતે જ રમાઈ રહી છે। મિહિરભાઈ, બહુ શાંતિથી હવે આપણે વાત કરીશું, આપણી પાસે સમય નથી, 1 જ મિનિટ છે, એટલે ટૂંકમાં એકદમ સંક્ષિપ્તમાં આપના જવાબ આપશો। જે રીતે રમેશ બિધુરી કહી રહ્યા છે, એક તો કે મેન્ટેનન્સ કોણ કરશે? એમણે એમ કહ્યું કે શાળાનું ઉદ્ઘાટન અમે કર્યું હતું, પરંતુ મેન્ટેનન્સ કરવામાં નથી આવ્યું, અને આ એક શાળાની વાત નથી, એવી ઘણી બધી શાળા છે, માત્ર ને માત્ર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરીને તમે એવું ન બતાવી શકો કે અમારું એજ્યુકેશન મોડલ श्रेष्ठ है। जी बिल्कुल, मैं आपको इस मुद्दे पे बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ। जो वीडियो हमारे भाई साहब जो है पैनलिस्ट वो दिखा रहे थे, उसमें ही आपको दिखा होगा कि वो जिस स्कूल का वीडियो दिखा रहे थे उसके एग्जैक्ट सामने वाला बिल्डिंग जो है वो नया स्कूल बनाया गया है। और मैं इन्होंने जो इस वीडियो जो शूट करके सारे मीडिया को दिया है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बनाया था उनके पिताजी ने और उनके बेटे ने, उनका इनॉग्रेशन किया हुआ था, ये बाप बेटे ने बनाया हुआ था, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। और तीसरी बात, अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई भी खामी रही होती और है, तो हम कभी ये नहीं कहते, मनीष सिसोदिया जी कभी गुजरात के और पूरे देश के भाजपा के नेताओं और भाजपा के लोगों को ये नहीं कहते कि विधानसभा आप तय करिए, आप जिस स्कूल देखना चाहेंगे वो स्कूल हम आपको बताएंगे। ठीक है, रमेश बिधुरी जी, आप जी क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर? देखो कृष्णा जी, ये जब मैं सुबह उस स्कूल में पहुंचा हूं, उस स्कूल में 12वीं क्लास की बच्चियां पढ़ रही हैं। ये चीटर लोग हैं, फ्रॉड हैं, इन्होंने दिल्ली को चीट किया, हम 1500 स्कूल बनाएंगे, 500 आपने पूरे हिंदुस्तान को चीट किया है, सर। आपने पूरे हिंदुस्तान को वोट लेकर चीट कर दिया, पूरे आपने लोगों को वोट लेकर चीट कर दिया। ये फ्रॉड लोग हैं। फिर इन्होंने ये फ्रॉड गर्दी करने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तरांचल के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं सिसोदिया साहब, ये बताएं कि दिल्ली में तुमने 500 स्कूल बनाने की बात कही थी, वहां पर बच्चे एक सेक्शन में 100 जी
આપણી પાસે સમયનો અભાવ છે, પણ શિક્ષણ માટે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. બંને તમામ લોકો અમારી સાથે જોડાયા, ખૂબ ખૂબ આભાર. પરંતુ શિક્ષણ તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય એટલે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તરફ જવાની પ્રક્રિયા એટલે શિક્ષણ. અને શિક્ષણ એ દરેક બાળકને મળવું જોઈએ, તેને આર્થિક સામાજિક સ્ટેટસ જોયા વગર. પરંતુ આજે જ્યારે શિક્ષણને લઈને વાત થઈ રહી છે, ખૂબ સારી બાબત છે, પરંતુ એકમાત્ર તેનો ઉદ્દેશ પોઝિટિવ હોવો જોઈએ, હકારાત્મક હોવો જોઈએ. નમસ્કાર.